वायनाड लोकसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद अब प्रियंका गांधी वाड्रा भी लोकसभा में नजर आएंगी। ऐसा पहली बार होगा जब गांधी परिवार के 3 सदस्य एक साथ संसद में नजर आएंगे। दरअसल सोनिया गांधी राज्यसभा सांसद हैं, तो राहुल गांधी लोकसभा सदस्य हैं। अब प्रियंका गांधी भी लोकसभा पहुंच गई हैं। बम्पर जीत के बाद प्रियंका गांधी ने कहा कि वे वायनाड की जनता की आवाज संसद में उठाने के लिए बेकरार हैं। जी, मैं वायनाड की जनता को धन्यवाद देना चाहूँगी कि मुझे इस तरह से उन्होंने जिताया, इतना प्यार दिया, और मैं उनको आश्वासन देना चाहती हूँ कि पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगी, उनकी आवाज़ बनूंगी, उनके लिए लड़ूंगी। प्रियंका ने केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में 4,10,931 वोटों के भारी अंतर से जीत हासिल की है। इतनी बड़ी जीत से प्रियंका ने राहुल गांधी के 2024 में जीत के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया है। तब राहुल गांधी को 3.6 लाख वोटों से जीत मिली थी। उपचुनाव में प्रियंका को कुल 6,22,338 वोट मिले। एलडीएफ के सत्यन मुकेरी 2,11,407 वोट के साथ दूसरे नंबर पर रहे, जबकि बीजेपी की नव्या हरिदास को 1,09,939 वोट मिले। प्रियंका की जीत से ये तय हो गया है कि संसद में कांग्रेस और मजबूत होगी, क्योंकि प्रियंका का सरकार पर हमला बोलने का अपना अलग ही अंदाज है। शुरू से मैं बहुत ज़्यादा महिलाओं के पक्ष में ही बोलती भी हूँ, और मैंने कोशिश भी की थी यूपी में काफ़ी उनको आगे लाने का और राजनीति में जहाँ तक मेरी समझ है, मैं सोचती हूँ कि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ना चाहिए, आना चाहिए। और आजकल तो सब समझने लग गए हैं। हमने तो पहल की थी उस समय, आज सारे राजनीतिक दल ये समझ गए कि महिलाओं में कितनी शक्ति है और राजनीति में कितनी उनकी भूमिका है। इस तरह से कि जितनी भी पॉलिसीज़ जो निकालते हैं लोग महिलाओं को का वोट निकालने के लिए, मैं चाहती हूँ कि वो सिर्फ वोट पर ध्यान ना हो, लेकिन उनकी भागीदारी पे ध्यान हो, उनके सशक्तिकरण के लिए ध्यान हो, और वो सचमुच उनको आगे बढ़ाने का काम हो। Tribal development issues, the farmers issue, the medical college issue, all segments we are facing that we will resolve it with the help of Priyanka ji. The immediate concern of the people is that the emergency help from the part of the landslide affected people, they are demanding. The concern of the landslide affected people is that we are demanding the emergency help of the central government. We need that. It is the duty of the central government to give the proper assistance to the victims of the landslide, to assist the people of landslide affected people, and we demand that Priyanka ji will address all the things that the Wayanad people is facing at the parliament. She is a courageous woman, having the potential, having the confidence and the high capacity. She is leading us. We are very much confident of that. വലിയ സന്തോഷത്തിലാണ് വയനാട്ടുകാരൊക്കെ. പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് അവർക്ക് പോളിംഗ് കുറവായിരുന്നെങ്കിൽ തന്നെയും വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിന് ജയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. വലിയ ആഹ്ലാദം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണത്. സന്തോഷത്തിലാണ് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയെ വയനാട്ടുകാർ ഒന്നായി നെഞ്ചിലേറ്റിരിക്കുകയാണ്. Within a short span of time, Priyanka ji could understand all the basic issues of Wayanad. She studied everything. At the time of Rahul ji's election 2 times, Priyanka Gandhi conducted campaign here, and she studied all the issues of Wayanad, and she is so committed to solve all those problems. सोशल मीडिया पर प्रियंका गांधी ने लिखा कि वे वायनाड की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगी, क्योंकि जनता ने उन पर भरोसा जताया है। വയനാട്ടിലെ വിവിധ വിഷയങ്ങൾ പരിഹാരമുണ്ടാക്കുവാനും ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ബിജെപി ഉയർത്തുന്ന ഫാസിസ്റ്റ് വെല്ലുവിളികളെ നേരിടാൻ ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിലെ ജനകീയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ടു പോകാൻ ഈ വിജയം ഉപകരിക്കും. വയനാട്ടിലെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമുണ്ടാക്കാനൊക്കെ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി ശ്രമിക്കും. അഭിമാനം തോന്നുകയാണ്. കാരണം ഞങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ വളരെ ആവേശത്തോടു കൂടിയാണ് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയെ ഈ മണ്ഡലത്തിൽ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഇവിടെ എല്ലാവരും കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിനപ്പുറത്തുള്ള ഒരു പിന്തുണ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന കാര്യം തർക്കമില്ല. വളരെ അടുക്കും ചിട്ടയോടുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ മുതൽ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ വലിയ ആവേശമായിരുന്നു. ഫീൽഡിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ഒരു ആവേശം നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. गांधी परिवार की विरासत के हिसाब से तो प्रियंका को बहुत पहले ही सक्रिय राजनीति में आ जाना चाहिए था, लेकिन प्रियंका ने बहुत लंबे वक्त बाद सियासत में कदम रखा। सवाल ये भी उठ रहे थे कि क्या 2 बच्चों की मां प्रियंका गांधी सक्रिय राजनीति में शामिल होंगी, और होंगी भी तो चुनाव कब लड़ेंगी। सितंबर 1999 में प्रियंका गांधी ने मीडिया को बताया था कि राजनीति में उनके आने में लंबा और बहुत लंबा वक्त लग सकता है। ऐसा हुआ भी। उन्होंने 20 साल बाद 2019 में सियासत में कदम रखा और बाद में उन्हें कांग्रेस महासचिव नियुक्त किया गया। किशोरावस्था में प्रियंका अक्सर अपने पिता राजीव गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में सुनने के लिए संसद जाती थी। 4 दशक बाद अब वे खुद संसद की सदस्य बन गई हैं।